Here we are. Oh, little Martha come running out. She looked like she had a way to have said something against him. Why didn't you come to my brother? Look what we've done for you, and you let us down. हम यहाँ पर हैं। वह छोटी मार्था दौड़ती हुई बाहर आई। वह ऐसे दिखाई दी, उसके पास बहुत कुछ कहने के लिए था, उसके खिलाफ कहने के लिए। तुम मेरे भाई के पास क्यों नहीं आए? देखो हमने तुम्हारे लिए क्या किया है, और तुमने हमें नीचे गिरा दिया है। What if she had said that? The story never would have finished the way it did. No, sir. It's the way you approach a divine gift of God. If God sends a gift, you've got to approach it right if you ever expect to get anything from it. You've got to approach it right. And Martha knew that. तो ठीक है, यदि उसने ये कहा होता, वो कहानी वहीं समाप्त नहीं होती है जिस तरह से उसने किया था। नहीं श्रीमान, इसी तरह से आप परमेश्वर के दैविक दान की ओर पहुंचते हैं। यदि परमेश्वर एक दान को भेजता है, तुम्हें ठीक तरह से उसके पास पहुंचना है। यदि आप कभी उससे कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं, आपको इसके लिए ठीक इसी तरह से उस तक पहुंचना है। और मार्था ये जानती थी। She'd probably read about the Shunammite woman and her baby, and if that Shunammite woman knew that God was in Elijah, how much more was he in Jesus? हो सकता है उसने शूनेमिन स्त्री के बारे में और उसके बच्चे के बारे में पढ़ा होगा, और यदि शूनेमिन स्त्री जानती थी कि परमेश्वर एलिया में था, कितना और अधिक वो यीशु में था। Sure. So she went up with the right approach. She ran up and fell down at his feet. I like that. Fell down at his feet and said, Lord. That's his right title. That's what he was. He was her Lord. Lord, if thou would have been here, my brother would not have died. निश्चय ही वो था, इसलिए वो सही तरह से वहां पर पहुंची थी। वह दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। मैं इसे पसंद करता हूं। उसके पैरों पर गिरकर और कहा, प्रभु। यही उसका सही शीर्षक है। यही है जो वो था। वह उसका प्रभु था। प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई कभी भी न मरता। Oh, my. Oh, I could just imagine seeing his great heart as he looked at that beautiful woman, the tears running down her cheeks, said, Lord, if you'd have been here, my brother would not have died. ओह प्रभु, ओह मैं कल्पना कर सकता हूँ उसके हृदय को देखते हुए, जब उसने उस सुंदर स्त्री की ओर देखा, उसकी गालों से आंसू नीचे बह रहे थे। कहा, प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई न मरता। Watch what she said. But even now, Lord, though he's dead, though the skin worms is crawling through his body, even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you. देखो उसने क्या कहा, लेकिन अब भी प्रभु, भले ही वो मर गया है और उसकी खाल के कीड़े उसकी देह में रेंग रहे हैं, अब भी प्रभु, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर इसे तुझे दे देगा। Oh, that's the secret. You might say, I've seen through every hospital, the doctor says I'm going to die, but even now, Lord, I'm all crippled up with arthritis, I can't move, but even now, Lord. ओह, यही वो रहस्य है। आप हो सकता है कहें, मैं हर एक अस्पताल से होकर गुजरा हूँ, डॉक्टर कहता है मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन अब भी प्रभु, मैं पूरी तरह से संधिवाग रोग से अपाहिज हो चुका हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, लेकिन अब भी प्रभु। That little baby had a water head that big around last night. There's nothing you can do. It spread on out and burst its little head and die. But even now, Lord, He's still the same God. He's still the same Lord. Even now, Lord. And He's sitting at the right hand of God Almighty, making intercessions upon the things that we claim that He's done for us. पिछली रात्रि को वो छोटा बालक जिसका सर बहुत ही बड़ा था, चारों तरफ से बड़ा था, वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से फैल जाता और उसके सिर को फाड़ सकता था और वो बालक मर जाता। लेकिन अब भी प्रभु, वो अब भी वही परमेश्वर है, वह अब भी वही प्रभु है, अब भी प्रभु, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। वो उन बातों पर बिचवाई को कर रहा है जिसे हम दावा करते हैं कि उसने हमारे लिए इसे कर दिया है। Now I really feel religious. Sure do.
You're going to call me a holy roller anyhow, so you might as well get started and get it over with. So, yes, sir. Even now, Lord, whatever you ask God, God will do it. अब मैं वास्तव में धार्मिक महसूस कर रहा हूँ, निश्चय में कर रहा हूँ। भले ही आप मुझे एक पवित्र पाखंडी बुला सकते हैं, इसलिए हो सकता है आपने इसे अच्छी तरह से आरंभ किया होगा और इसी से समाप्त करते हैं। तो हाँ श्रीमान, अब भी प्रभु जो कुछ आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर से कर देगा। Ask the Father anything in my name, I'll do it, Jesus said. Even now, Lord, whatever you ask, God will give it to you. Oh, that must have turned in his great heart. जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगो मैं इसे कर दूंगा, यीशु ने ये कहा था। अब भी प्रभु जो कुछ आप मांगोगे परमेश्वर से आपको दे देगा। ओह, इसने जरूर उसके मान हृदय को घुमा दिया होगा। He said, thy brother shall live again. She said, yea, Lord, he'll live. He was a good boy. He'll come forth in the general resurrection at the last day. Them Jews believed in the general resurrection. He'll come forth in the resurrection of the last days. उसने कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, वह जिएगा। वह एक भला लड़का था। वो अंतिम दिनों में सार्वजनिक पुनरुत्थान में जी उठेगा। उन यहूदियों ने सार्वजनिक पुनरुत्थान पर विश्वास किया था। वो अंतिम दिनों में पुनरुत्थान में वापस आ जाएगा। Look at him. He pulled his little self together. He said, I am the resurrection and life. Oh my, there never was a man can say that before. There never will be one afterwards can say it. He's the only one that can say it. I am the resurrection and life, saith the Lord. उसकी ओर देखना, उसने अपने छोटे से अंग को एक साथ किया। उसने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ओह प्रभु, वहाँ इसके पहले एक भी मनुष्य नहीं था जो यह कह पाता। वहाँ इसके बाद भी एक मनुष्य नहीं होगा जो इसे कह सकता हो। केवल वही एक है जो इसे कह सकता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। प्रभु यों कहता है, He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She said, yea, Lord. Oh, she knows something's fixing to happen. Has to be. वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए, वह फिर से जी उठेगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह कभी न मरेगा। क्या तू इससे विश्वास करती है? स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु। वह जानती थी कुछ तो होना तय है, कुछ तो होना है। When faith from an honest heart meets God, them cogs just comes together like that. Something has to take place. I challenge this audience tonight in the name of Jesus Christ. Let your faith connect with God like that. In a few minutes, we'll have another Pentecost. जब विश्वास ईमानदार हृदय परमेश्वर के साथ मिलता है, वे पहिए के दांत के जैसे इस तरह से बस एक साथ हो जाते हैं। कुछ तो बात को जगह लेना है। मैं आज रात श्रोतागणों के सामने चुनौती को देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारा विश्वास इस तरह से परमेश्वर के साथ जुड़ने दो। कुछ मिनटों में हमारे पास एक पेंटिकॉस्ट होगा। There'll be such a revival breaking this town, there wouldn't be enough cops in the country to keep them down. That's right. There'll be a real revival. वहाँ वो एक ऐसी बेदारी को लेकर आएंगे, इस देश में इतनी पुलिस नहीं होगी कि उन्हें संभाल सके। यह सही बात है, वहाँ एक सच्ची बेदारी होगी। Even now, Lord. Well, Lord, we've done call off in this, we've did this and did that. I don't care what you've done. Even now, Lord, He's waiting for you to call on Him. Believest thou this? Sure. Yes, sir. Even now, whatever you ask Him. अब भी प्रभु, ओह प्रभु, हम इस बात को नहीं समझ पाए हैं। हमने ये किया है और वो किया है। मैं परवाह नहीं करता आप लोगों ने क्या किया है। अब भी प्रभु, वो आपके लिए रुका हुआ है कि आप उसे पुकारे। वो, क्या तू उसे विश्वास करता है? निश्चय ही, हाँ श्रीमान, अभी भी जो कुछ तो उसे मांगेगा। Where have you laid him? Now he goes down to the grave. He was man enough to cry. He was God enough to raise the dead. आपने उसे कहाँ पर लेटाया है? वो अब कब्र की ओर जाता है। वह पर्याप्त रूप से मनुष्य था कि वो रोए। वह पर्याप्त रूप से परमेश्वर था
कि वह मुर्दों को जिलाए। Here some time ago, a woman that belongs to a certain group of people, I never make it a habit to make it about denominations, but this woman, they do not believe that Jesus was divine. They said he was just a prophet. वहां कुछ समय पहले एक स्त्री जो एक तरह के लोगों के झुंड के साथ संबंध रखती है, मैं कभी भी आदत नहीं बनाता हूं जिससे कि संस्था बन जाए, लेकिन यह स्त्री, वे कभी भी विश्वास नहीं करते कि यीशु दैविक था। उन्होंने कहा वह तो केवल एक नबी था। Now if he is just a prophet, we're all in sin. He was either God, nothing less than God, or the biggest deceiver the world ever had. That's right. He was more than a man. अब वो, यदि वह केवल एक नबी था तो हम सब पाप में हैं। वो या तो परमेश्वर था या तो परमेश्वर से कम नहीं था, या तो वो संसार का अब तक का सबसे भरमाने वाला था। यह सही बात है, वो एक मनुष्य से बढ़कर था। She said he wasn't divine. There's so much of that in this social gospel today, trying to make Jesus Christ a prophet. Why, he was a God of the prophets. Sure he was. स्त्री ने कहा वो दैविकता नहीं था। यही है जो बहुत से आज इसमें सामाजिक सुसमाचार हैं, जो यीशु मसीह को एक नबी बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? वो नबियों का परमेश्वर था। निश्चय ही वह था। She said, I'll prove it to you by your Bible. He was just a man. I said, you do it. And she said, when he went to the grave of Lazarus, the Bible said he wept. He had to be mortal or he couldn't weep. स्त्री ने कहा, मैं इसे तुम्हें तुम्हारी बाइबल से साबित करूंगी। वह केवल एक मनुष्य ही था। मैंने कहा, तुम इसे करो। और स्त्री ने कहा, जब वह लाजरस की कब्र के पास आया, बाइबल ने कहा वह रोया था। वह नाशवान था या वह नहीं रो सकता था। I said, lady, is that your scripture? I don't mean to be sacrilegious here to say this, but I'll tell you what I told her. She said, that's it. I said, that statement is weaker than the broth made out of the shat of a chicken that starved to death. I said, well, you haven't got one thing to stand on. मैंने कहा, महिला, यह आपका वचन है। मेरा यह कहने का मतलब यहाँ पर धर्म विरोधी होना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैंने उससे क्या कहा। स्त्री ने कहा, यह ऐसा ही है। मैंने कहा, यह कथन उससे बहुत ही कमजोर है कि एक मुर्गे की छाया से बना हुआ शोरबा जो मरते तक भूखा रहा। मैंने कहा, तो ठीक है, तुम्हारे पास इस पर खड़े रहने के लिए एक ही बात नहीं होनी चाहिए। She said, why, he wept. That showed he was mortal. I said he was both mortal and immortal. He was God in flesh. She said, oh, nonsense. स्त्री ने कहा, क्योंकि वह रोया था, यह दिखाता है कि वह मरणहार था। मैंने कहा, वो अमरहार और मरणहार दोनों था। वह देह में परमेश्वर था। उसने कहा, ओह, यह मूर्खता है। I said he went to the grave weeping. That's true enough. But when he straightened his little self up, the Bible said there wasn't much to look upon him. No beauty we should desire him. But when he threw them little shoulders back and said, Lazarus, come forth. And a man had been dead 4 days and rotten in the grave. He came forth. That was more than a man. Show me the man to do it. मैंने कहा, वो कब्र पर जाकर रो रहा था। यही पर्याप्त रूप से सच्चाई है। लेकिन जब उसने उसके छोटे से अंग को सीधा किया, बाइबल ने कहा, वहां उसकी ओर देखने के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई सुंदरता नहीं कि हम उसे चाहते। लेकिन जब उसने अपने उन कंधों को पीछे करके कहा, लाजरस बाहर आ, और एक मनुष्य जो 4 दिनों से मरा हुआ था और कब्र में सड़ गया था, वो बाहर आ गया। वो एक मनुष्य से बढ़कर था। मुझे एक मनुष्य दिखाओ जो इसे कर सकता है। What was it? Corruption knew its master. Life knew its creator. Something had to happen. He spoke. And a man that was dead and in the grave for 4 days raised again and stood on his feet and lived. Hallelujah. यह क्या था? सड़ावट उसके गुरु को जानती है। जीवन ने उसके रचनाकार को जान लिया। कुछ तो घटित होना था। उसने बोला, और मनुष्य जो मरा हुआ था और 4 दिनों से कब्र में था, फिर से उठकर खड़ा हो गया और वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जीवित हो गया। हालेलुया! That was God in His Son. Yes, sir. That was God making Himself known through His Son. That was God speaking, not a man. उसके पुत्र में वो परमेश्वर था। हाँ श्रीमान, वो परमेश्वर था,
जो अपने आप को उसके पुत्र में से होकर बता रहा था, वो परमेश्वर बोल रहा था, ना कि एक मनुष्य। He was a man when he looked around on that tree that day for something to eat. That was a man. But when he took 5 biscuits and 2 fish and fed 5,000, that was more than a man. That was God feeding them in that. It was more than a prophet, more than a man. He was the God man. वह एक मनुष्य था। जब उसने कुछ खाने के लिए यहाँ वहाँ पेड़ की ओर देखा, वो एक मनुष्य था। लेकिन जब उसने 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर 5,000 लोगों को खिलाया, यह एक मनुष्य से बढ़कर था। यह वो परमेश्वर था। वहां पर उन्हें जो खिला रहा था, वो एक नबी से बढ़कर था, एक मनुष्य से बढ़कर। वह एक परमेश्वर मनुष्य था। Sure, he laid on the back of that little boat that night, and the seas roaring and bouncing like a bottle stopper out there in that mighty sea, when 10,000 devils of the sea swore they had drowned him that night. निश्चय ही वह उस रात नाव पर पीछे लेटा हुआ था और समुद्र दहाड़े और छलांगे लगा रहा था, जैसे वहां पर एक बोतल की डाट होती है उस विशाल समुद्र में। जब 10,000 समुद्र के शैतानों ने शपथ ली, वो उसे उस रात को डुबा देंगे। He was a man weak and tired from praying for the sick, laying back there and the wind didn't even disturb him. He was a man when he was asleep. But when he woke up, put his foot upon the brail of the boat, looked up and said, "Peace, be still," and the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God in man making himself known. That's right. वो एक मनुष्य था, कमजोर और थका हुआ, बीमारों के लिए प्रार्थना करके वहां पीछे लेटा हुआ था, और यहाँ तक हवा ने भी उसे परेशान नहीं किया। वह एक मनुष्य था जब वो वहां पर नींद को ले रहा था। लेकिन जब वो जाग उठा, अपने पैरों को नाव के किनारे पर रखा और ऊपर देखा और कहा, शांत हो जाओ, और हवाओं और लहरों ने उसकी आज्ञा को माना। वो एक मनुष्य से बढ़कर था। वह मनुष्य में परमेश्वर था जो अपने आप को बता रहा था। यह सही बात है। He was a man at the cross when he cried for mercy. When he cried and said, "I thirst," that was a man. When he died, he was a man. But on Easter morning, when he broke the seals of death, hell, in the grave, and rose again, he was more than a man. He was God made manifest. वह क्रूस पर एक मनुष्य था। जब उसने दया के लिए पुकारा, जब उसने जोर से चिल्लाया और कहा, मुझे प्यास लगी है, यह एक मनुष्य था। लेकिन जब वो मरा, वो एक मनुष्य था। लेकिन ईस्टर की सुबह को, जब उसने मृत्यु, नरक और कब्र की मोहरों को तोड़ा और फिर से जी उठा, वो एक मनुष्य से बढ़कर था। यह परमेश्वर प्रमाणित हुआ था। No one of the poets said, "Living, he loved me; dying, he saved me; buried, he carried my sins far away; rising, he justified freely forever. Someday he's coming. Oh, glorious day!" कोई आश्चर्य नहीं। कवि ने कहा, जीते जी उसने मुझसे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचा लिया, गाड़ा गया, वो मेरे पापों को दूर उठा ले गया। जी उठकर उसने मुझे हमेशा के लिए धर्मी करके आजाद किया। किसी दिन वो आ रहा है। ओह, वो महिमामय दिन होगा। They said, "Because I live, you live also. Believest thou this? He's the same yesterday, today, and forever. Believest thou this? I believe the Holy Ghost is right here now. Believest thou this? I believe He'll fill us with His presence. Believest thou this?" उसने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा ठीक अभी यहाँ पर है। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमें उसकी उपस्थिति से भर देगा। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? I believe the Holy Ghost wants to pour His presence out, heal all the sick, make all the people who hasn't got the Holy Ghost be healed. Believest thou this? Do you believe with all your heart? Let's stand to our feet and give Him praise. I believe He'll fall right now upon us. मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा उसकी उपस्थिति को उंडेलना चाहता है। सारे बीमारों को चंगा करना, उन सारे लोगों को तैयार करना जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है, वे भर दिए जाएंगे। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? क्या तुम अपने
पूरे हृदय से विश्वास करते हो, आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और उसे स्तुति दें। मैं विश्वास करता हूँ वो ठीक अभी हम पर उतर कर आ जाएगा। Oh Lord God, creator of the heavens and earth, author of eternal life, giver of every good gift, we believe us now this, Lord. We believe that you hear the meeting. ओ प्रभु परमेश्वर, धरती और आकाश के सृष्टिकर्ता, अनंत जीवन के लेखक, अच्छे दान को देने वाले, हम इस पर विश्वास करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि यहाँ इन सभाओं में यह आप ही हैं। We believe that you blessing our souls. We believe that you pouring out your Spirit upon us. We believe that you're the same yesterday, today, and forever. We believe you're alive forevermore. And our names are written in the Lamb's Book of Life. हम विश्वास करते हैं कि ये आप ही हैं जो हमारे प्राणों को आशीषित कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं ये आप ही हैं जो अपनी आत्मा को हम पर उंडेल रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हम विश्वास करते हैं आप युगानुयुग जीवित हैं और हमारे नामों को मेमने की जीवन की किताब में लिखा है। All heavens and earth will pass away, but we'll live forever because you live forever. Lord, you promised it to us. We believe it with all of our heart. Everything that's in us, we believe it, Lord. I love him, I love him. सारे धरती और आकाश चल जाएंगे, लेकिन हम सदा के लिए जीवित रहेंगे, क्योंकि आप सदा के लिए जीवित है प्रभु। आपने इसकी हमसे प्रतिज्ञा की है। हम इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं। जो कुछ हम में है इसे विश्वास करते हैं प्रभु। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। Do you believe me? I believe that's the Holy Ghost. It's something falling on us. Believe us now this. I believe He wants to heal every person right now. Believe us now this. क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। यही वो पवित्र आत्मा है। वहाँ पर कुछ तो हम पर आ रहा है। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूँ। वो हर एक व्यक्ति को ठीक अभी चंगाई देना चाहता है। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? Raise your hands to Him. Stand up to your feet. Believe us now this. The Holy Spirit is here. This is that. Peter said this is that. This is it. The Holy Ghost. उसकी ओर हाथों को उठाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? वो पवित्र आत्मा यहाँ पर है। यही है वो। पतरस ने कहा, यही है वो, यही है वो पवित्र आत्मा। Oh Lord, Creator of heavens and earth, send Thy power and Thy blessings and Thy goodness upon this people and bless their hearts and let them see that the Son of Man is alive forevermore. Grant it, O Lord. We present them to Thee in the name of Jesus Christ, the Son of God. ओ प्रभु, धरती और आकाश के सृष्टिकर्ता, अपनी सामर्थ और अपनी आशीषों और अपनी अच्छाइयों को इन लोगों पर भेजिए और उनके हृदय को आशीष देना और वो देखें कि मनुष्य का पुत्र सदा के लिए जीवित है। इसे प्रदान करे ओ प्रभु। हम उन्हें आपके आगे रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो परमेश्वर का पुत्र है। Anybody who doesn't have the Holy Ghost, raise up your hands and praise God. I believe He'll fall on you. Somebody put your hands on them. This is the hour. किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है तो अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। मैं विश्वास करता हूँ वो आप पर उंडेल देगा। उन पर कोई तो अपने हाथों को रखे। यही वो घड़ी है। Why do we wait any longer? This is the time. This is the time for Pentecost. Coming back to God. Get right with God, Pentecost. Get your heart stirred by the power of the living God. Let His Spirit move into you, saturating your soul. क्यों हम ज्यादा देर रुके रहें? यही वो समय है। यह पेंटिकॉस्ट का समय है परमेश्वर के पास वापस आने के लिए। परमेश्वर से अपने संबंध ठीक कर लो पेंटिकॉस्ट। अपने हृदय को जीवित परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उत्तेजित करें। उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर आकर और तुम्हारे प्राणों को परिपूर्ण करे। वो रात के बाद रात यहाँ पर है। यहाँ पर वो बीमारों को चंगा करने के लिए है, अंधों को दृष्टि देने के लिए,
महान और सामर्थ्यवान के जरिए से वो खुद को साबित करेगा कि वो हमेशा एक सा है। Hallelujah! Raise your hand. Forget where you're at. Just know that you're around Him. And His goodness and His glory and His power and His mercy. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah! हालेलुया! उसकी स्तुति करो, अपने हाथों को उठाएं, भूल जाएं कि आप कहां पर हैं, केवल जान लें कि आप उसके आसपास ही हैं और उसकी अच्छाइयों के और उसकी महिमा के और उसकी सामर्थ और उसकी दया जो हमेशा के लिए बनी रहती है, वो हमेशा के लिए एक सा है। प्रभु का नाम धन्य हो। हालेलुया! Oh, praise His holy name. Oh, how wonderful! How mighty is He! How many like to consecrate your lives to God right now, fresh? Raise up your hand. How many like to consecrate your lives to God? That's it. Raise up your hand. ओह, उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। ओह, कितना अद्भुत, कितना सामर्थी है वो। कितने लोग अपने जीवन को नए रूप से परमेश्वर को ठीक अभी समर्पित करना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाएं। कितने लोग अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं। यही है ये, अपने हाथों को उठाएं। Let's be Pentecost. Let's be the people of God. I raise my hand. Lord, here am I. Send me. Take an angel to the coals of the altar and send your power upon us, Lord. आइए हम पेंटिकॉस्ट को देखें। आइए हम परमेश्वर के लोगों को देखें। मैं अपने हाथों को उठाता हूँ। प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। एक दूत को लेकर तब उस वेदी से कोयले को उठाकर और अपनी सामर्थ को हम पर भेज प्रभु। God, grant it and fill us with thy goodness and thy mercy. Hear our prayer, O Lord, hear our prayer. As believing children we stand. Praise be to His name. परमेश्वर इसे अपनी आत्मा की संपूर्णता से प्रदान करें। ओ पिता, हमारी प्रार्थना को सुने। प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुने। जब विश्वास करते हुए बालक जो यहाँ खड़े हुए हैं, उसके नाम की स्तुति हो। Oh, like waves of glory, falling, oh, dewdrops of mercy. Oh, praise be to God. May our souls wake. Bring us out of this. Bring us out of this. This is the Holy Spirit that comes. ओ, जैसे कि महिमा की लहरें गिर रही हों, ओ, दया की ओस की कुछ बूंदें परमेश्वर की स्तुति हो होने पाए। हमारे प्राण रुके हुए हैं। क्या तुम इसे विश्वास करते हो? क्या तुम इसे विश्वास करते हो? यह वो पवित्र आत्मा है जो आता है। This is that unseen force that drives us into the kingdom of God. That blesses us. Pentecost, come back home. You're expecting back home, you precious people. God wants you to consecrate yourself. Women, clean up yourselves. Men, clean up yourselves. Let's get started back to God and serve God with a real true heart. यही है वो जो अदृश्य ताकत है जो हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाती है। पेंटिकॉस्ट की आशीषें। वापस घर आ जाओ। आप वापस घर जाने के इंतजार में हैं। आप बहुमूल्य लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को समर्पित करें। स्त्रियों, अपने आप को साफ करें। पुरुष, अपने आप को साफ करें। आइए वापस परमेश्वर से आरंभ करें और परमेश्वर की सेवा साफ हृदय से करें। Praise God. The Holy Spirit's not in the meeting. Just do what you feel led to do. Just let the Holy Ghost move on now. There's nothing I can say. I just don't know what to say now. The Holy Spirit's just all over the building. परमेश्वर की स्तुति हो। पवित्र आत्मा सभा में प्रकट हुआ है। बस वही करें जो आपको करने के लिए अगुवाई महसूस हो रही है। पवित्र आत्मा आपको आप पर संचालित होने दो। वहाँ कुछ भी नहीं है जो मैं कह सकता हूँ। मैं बस नहीं जानता मुझे अब क्या कहना है।
पवित्र आत्मा बस सारी इमारत में है। Blessed be the name of the Lord. Praise be to the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise be to the Lord. Praise the Lord. How wonderful, how glorious. प्रभु का नाम धन्य हो, प्रभु की स्तुति हो। ओह हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। कितना अद्भुत, कितना महिमामय। How beautiful, how wonderful the praise of the saints of God upon your faces, upon the presence of the Holy Spirit. They're moving us, showing us His glory. How these great multitudes in one accord praising His name. कितना सुंदर आपके मुख पर परमेश्वर के संतों की स्तुति कितनी अद्भुत है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के ऊपर जो यहाँ पर मंडरा रही है और हमें उसकी महिमा को दिखा रही है, जो इस बड़ी संख्या में से एक चित्त होकर उसके नाम की स्तुति कर रहे हैं। Turn around and shake hands with somebody and say, praise the Lord, brother, praise the Lord, sister. Let's get right into it. God brings us up. Praise the Lord, that's right. यहाँ वहाँ मुड़कर किसी के साथ अपने हाथों को मिलाएं और कहें, प्रभु की स्तुति हो भाई, प्रभु की स्तुति हो बहन। आइए ठीक इसमें चले जाएं और परमेश्वर हमें हिलाए। प्रभु की स्तुति हो, यह ठीक है। All you Methodists and Baptists and Presbyterians, Pentecostals and Seventh-day Adventists and whatever you are, shake hands with one another in the presence of the Lord God. That's it. Oh, hallelujah. आप सारे मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल और सेवंथ डे एडवेंटिस्ट जो भी आप हैं, एक दूसरे से प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हाथों को मिलाएं। बस इतना ही। ओह हालेलुया, Hallelujah, hallelujah. Oh, I'm so glad I'm going. I'm so glad. Oh, tearing down the walls, burning out the cross. Praise, freedom of the Lord, praising His holy name. Blessed be the name of the Lord. Oh, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ। ओह, दीवारों को तोड़ते हुए, बेकार की बातों को बाहर फेंकते हुए, महिमा हो, प्रभु में आजादी है। उसके नाम की स्तुति करते हुए, प्रभु का नाम धन्य हो। ओह हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। Oh, I just love to see that people shaking one another's hands and lighting up their faces. The power of God saying, that's it. That's it. We're children of God. We're all one great big church, one great big person in Christ Jesus. His bride, the glorious one, the coming of the Lord drawing nigh. ओह, मुझे यह देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग एक दूसरे से हाथ को मिला रहे हैं और अपने चेहरों पर प्रकाश को ला रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ कह रही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम सब एक बड़ी विशाल कलीसिया है, एक बड़ा विशाल यीशु मसीह में व्यक्ति, उसकी दुल्हन, उसकी एक महिमा में है। परमेश्वर का आगमन बहुत ही नजदीक आ रहा है। His people getting together and loving themselves with love and the power of His presence. Oh, this is like heaven. Oh, this is good. Amen. उसके लोग एक साथ आ रहे हैं और अपने आप में प्रेम कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति की सामर्थ और प्रेम के साथ। ओह, यह एक स्वर्ग के जैसा है। ओह, यह अच्छा है। आमीन।
Just worshiping the Lord in spirit and in power. Such a time. ओह, कितना महिमामय, कितना अद्भुत है केवल प्रभु की आराधना करते रहना, उसके आत्मा और सामर्थ्य में। क्या ही समय है। There's just no, I told the crowd, brother, there's no place to stop. There's no place to, we never begin, so we don't stop. Just wonderful. How many feel real good? Just the presence of the Lord. Oh, my. It's wonderful. The presence of the Lord here. ये रुकना और आराम करना, वहां पर बस कोई भी नहीं। मैंने भाइयों को बताया, भाइयों, वहां कोई भी रुकने के लिए स्थान नहीं है और यहाँ कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी आराम ही नहीं किया, इसलिए हम नहीं रुकते हैं। बस ये अद्भुत है। कितने लोग सचमुच में अच्छा महसूस करते हैं केवल प्रभु की उपस्थिति। ओह प्रभु, यह अद्भुत है। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। Now, the presence of the Lord is here to heal the sick. Make the people well. Just believing. Do you believe Him? If we can believe Him, all things are possible. Do you believe that? Do you believe that that's the presence of the Lord? अब प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है ताकि बीमारों को चंगा करे, लोगों को ठीक करे। केवल उस पर विश्वास करें। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? यदि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं तो सारी बातें संभव है। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? क्या आप यह विश्वास करते हैं कि यही प्रभु की उपस्थिति है? Now, while you give me just a moment. Now listen just for a moment. Let me prove to you it's the Holy Spirit here. Let me show you that the Holy Spirit, the very one that does the talk and the one that does the thing, knows that. How many is here now that come in here sick? Let's see your hands. Ones that had a sickness. अब जबकि आप मुझे बस थोड़ा समय देना, केवल अब कुछ समय के लिए और केवल कुछ समय के लिए ध्यान से सुनना, मैं आपको साबित करूंगा कि ये पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आपको दिखाऊंगा कि पवित्र आत्मा वही वो एक है जो बातें कर रहा है, वही वो एक है जो इन चीजों को कर रहा है, जो जानता है। कितने लोग अब यहाँ पर हैं जो यहाँ पर बीमार आए थे? मैं आपके हाथों को देखना चाहता हूँ। जो कुछ लोग बीमार थे। There's a man standing there. Do you believe, mister? There's no prayer cards out, but do you believe that God can heal you? Do you believe He can tell me your trouble? It's in your side. यही वो लोग हैं। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। क्या आप विश्वास करते हैं श्रीमान? वहां पर कोई प्रार्थना के कार्ड नहीं दिए गए हैं, लेकिन क्या आप यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? क्या विश्वास करते हैं वो आपकी तकलीफ को मुझे बता सकता है? ये आपके ऊपर है। You're up for an operation. That's right. Your name's Mr. Cartwright. That's right. Is that right? Wave your hand. All right. Go home and be well. You won't need it. You believe it? आप वहां पर एक ऑपरेशन के लिए थे। यह सही बात है। आपका नाम श्रीमान कर्टराइट है। यह सही है। क्या यह सही है? अपने हाथों को हिलाएं। तो ठीक है, घर जाएं और चंगे रहें। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप इसे विश्वास करते हैं? That man holding that baby in his arms, you believe me to be God's servant? You believe this to be the Holy Ghost? I do not know you. Is that right? Never seen you in my life. We're strangers. वो मनुष्य जो अपने हाथों में बालक को पकड़े हुए है, क्या तुम मुझे परमेश्वर का दास करके विश्वास करते हो? क्या तुम इसे विश्वास करते हो? ये पवित्र आत्मा होगा। मैं आपको नहीं जानता। क्या यह सही बात है? मैंने अपने जीवन में कभी भी आपको नहीं देखा है। हम अजनबी हैं। You believe the Holy Ghost can tell me what's the matter with that baby? Got a rash. That's right. Isn't that right? Certainly. You're not from here. No. क्या विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपको बता सकता है कि उस बालक के साथ क्या समस्या है? उसे एक लाल चकत्ते की बीमारी है। क्या यह सही है? क्या यह सही नहीं है? निश्चय ही
आप यहाँ से नहीं हैं, नहीं। You got a stomach trouble, you're suffering with yourself. That's right, isn't it? You're from Kansas City. All right, return back. Jesus Christ makes you well. Hallelujah! Do you believe it with all your heart? आपको एक पेट की समस्या है, आप अपनी इस समस्या से होकर गुजर रहे हैं, यह सही है? क्या ऐसा नहीं है? आप कैंसास से हैं, तो ठीक है, वापस जाएं। यीशु मसीह आपको चंगाई देता है। हालेलुया! आप विश्वास करें। आप इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं। Here's the angel of the Lord, all over this little bitty woman, kind of elderly, sitting right in here, suffering with a hernia. You believe God will heal you that hernia, sister? यहाँ पर प्रभु का दूत है, उस टोपी पहनी हुई छोटी कद की स्त्री के ऊपर मंडरा रहा है। एक प्रकार की बुजुर्ग जो ठीक यहाँ पर बैठी हुई है, वह हर्निया से पीड़ित है। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करती हैं? वो आपको हर्निया से चंगाई देगा, बहन। You, with the little red flower on your hat, raise up your hand. All right, go home and be well. Amen. Oh, it's found. It's Christ, the Son of God. He's raised from the dead. You sure? आप जो अपनी टोपी में जो लाल गुलाब को डाले हुए हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, तो ठीक है, घर जाएं और स्वस्थ रहें। आमीन। ओह, यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वह मुर्दों में से जी उठा है, वो यहाँ पर है।